अगर ये आँख ब्लिंक नहीं हुआ और इसने आपने दबा दिया तो थप्पड़ भी मिल सकता है ना। ऐसा लगेगा कि आँख मार रहा है, आँख आपके पॉकेट में लेके आप घूम रहे हो। सेमिनार वाज ऑसम, अच्छा था बहुत। हाय अफीफा। So we are going to attend a seminar. After a long time. Get ready to board. ओके अब लिफ्ट कहाँ पे है? 4th फ्लोर में। चलो इस रियान भड़क को ताड़ लेते हैं थोड़ा सा। उसका बैच, उसका बॉल, उसका सिग्नेचर एंड ही हिमसेल्फ। The seminar is done, but the workshop is doing by the 3rd sem workshop. Let's go. Shakal. We'll have to inspect the socket of the patient. क्योंकि I'm not going to discuss about the nose and the ear processes because that's a different thing. Maybe in the next collaboration or next visit I'll be speaking about them. But today I'm going to speak about the ocular prosthesis, जो we have shown the eye वाला. So for that you need to have a very good idea about the anatomy of the eyelid, right? Eyelid का structure कैसा है, because eyelid needs to be adequate. जैसे ectropion हो गया बहुत ज़्यादा, entropion हो गया, तो those eyelids are tough to be fitted. But if we see that the eyelids are okay and there's a pocket kind of structure, no? Pocket kind of structure is required because we need to take the impression with the help of this kind of impression trays. Yes. ये अलग अलग साइज का होता है and हम अलग अलग साइज का we will put in the patient socket and see which one fits the best, ताकि दूसरे आँख के साथ मैच हो, है ना। अभी तो इनका भाई साहब का दूसरा आँख नहीं है, so maybe we will put एक आगे से लगा फिर मैच द PFH and all, तो हमें लगेगा कि दिस so now taking the impression is the most crucial and the tricky part of the prosthesis making process. Okay, अभी for taking the impression we have two kind of options. One is with the help of this silicone. There are two different components of silicone are there. Normally if we inject इंडिविजुअली अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता है, बट वंस दे मिक्स दे विल फॉर्म अ विनाइल सिलोक्सेन काइंड ऑफ सॉल्यूशन. Okay. So we need to fit it with a nozzle. Now in the nozzle you can see there are two openings, है ना. Yes. And अंदर क्या है, there is a spiral kind of structure. तो इसमें क्या होगा, ये दोनों चीज़ अंदर मिक्स होकर निकलेगा, राइट. अभी just for demonstration I will show you. Just any one of you volunteer कौन करेगा. So I'm injecting this in your hand. You just mix it properly. अच्छे से mix करना, हाँ, ताकि very intensely mix हो, and just leave it after mixing, हाँ. Don't keep touching it. हाँ, ऐसे करके रख दो. Okay, it will take some time. And दूसरा option is we have is the alginate. So this is a naturally occurring biodegradable polymer which is extracted from brown algae and some kind of bacteria. तो इसमें क्या है, if it is highly hydrophilic तो पानी में मिक्स करेंगे it will form into a irreversible semi solid kind of thing. ऐसा होगा जब पानी में मिक्स होगा. I'll show you after mixing. देखो it looks something like paneer only, na? Oh yes. So this other uses of alginate is like they put it in some hydrol. इसको one is the silicone part with which we can take the impression. यहाँ inject करना होगा with the help of this gun. अभी advantage of silicone is like you can store that impression for a very long time. Patient has come to you to give the impression measurement. उसके 6 महीने बाद भी अगर patient comes for the final fitting, you can do the fitting. लेकिन इसमें अगर हम लोग बनाते हैं we'll have to make it very like उसी दिन या in next couple of days we'll have to make it. So उसमें हम लोगों को क्या करना है, so we'll have to mix it with water and we'll have to take a syringe. जैसे वीडियो में you have seen ना. Yes. ऐसे एक syringe ले लिया and then we take little bit of this powder. इसको मिक्स करना है विथ वाटर.
Any one of you can do. Try. येलो कलर हेयर स्टाइल येलो पिंक दिखाओ राहुल। इसका मतलब है ये रिएक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन शुरू हो गया मतलब ये पीला से क्या हुआ, पिंक हुआ, अब फिर से पीला हो जाएगा। तो पीला होने से पहले ही यू हैव टू इंजेक्ट। पुट इट इन द पेशेंट प्लेट, उसको ऐसे किया एंड उसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। इंजेक्ट करने के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो वंस इट टर्न्स इनटू सेमी सॉलिड तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, दूसरे कप में वी विल मिक्स द सेम थिंग एंड वी विल डिप इट, यहाँ पर डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद इफ़ यू हैव ब्लेड यू हैव टू कट। कटने के बाद ये अंदर से ऐसे निकलता है। अब जैसे निकल गया इसको फिर ऐसे बंद किया और वैक्स को क्या करेंगे हम लोग मेल्ट करके पिघला के विल पुट इट हियर। अब उसको डालने के बाद ना वी विल गेट वन जस्ट या ऐसा एक वैक्स का वो बन जाएगा। That's all. यही जो आंखों पे लगाएंगे। हाँ वो पहले ट्रायल करेंगे क्योंकि सी आफ्टर मेकिंग द फाइनल प्रोस्थेसिस और इम्प्लांट यू कांट डू टू मच ऑफ मॉडिफिकेशन। जो मॉडिफिकेशन साइज शेप में करना है सब इसी स्टेज में करना है, क्योंकि इसमें क्या है, चाकू लो आप अपने हिसाब से ट्रिम करो फिर से लगाओ जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो लुक्स के साथ। तो एक बार जब इसको लगाया फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सेंट्रेशन मार्क करेंगे, तो मार्कर और उसमें एक स्टिक लगा देंगे, ठीक है। स्टिक लगाने के बाद वी विल टेक ऐसा एक एल्यूमिनियम का आता है, इसको बोलते हैं इम्प्रेशन फ्लास्क। अब इस फ्लास्क में क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक डेंटल स्टोन आता है सीमेंट ऐसा एक पैकेट, उसको घोल के वी विल पुट इट और उसको ऐसे दबा देंगे, उसको डाल देंगे, डाल के इसको ऐसे छोड़ देंगे। अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा। इसको हार्ड होने के बाद अभी ताकि दोनों सरफेस चिपके नहीं, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेटिंग मीडियम होता है, जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वो लगाएंगे और इसको ऊपर से ऐसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद ऊपर तो एक होल है ना बड़ा सा, अब फिर से डेंटल स्टोन को मिक्स करके ऊपर से हम डाल देंगे इसके अंदर। क्या हो जाएगा, थोड़ी देर रखने के बाद हार्ड हो गया, इसको खोलेंगे, ये ऐसा पीछे का स्ट्रक्चर इसने ले लिया और आगे का स्ट्रक्चर तो ये है ही। Yes. तो इसको काट के क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद ऐसा हो जाएगा ना, बीच में छोटा सा वो कॉर्निया का सेंट्रेशन वाला पार्ट और ऐसा खाली जगह। अभी क्या है, कॉर्नियल बटन्स रहता है, वो हमें पेंट करना होगा अकॉर्डिंग टू आइरिस ऑफ द पेशेंट, ऐसा ठीक है। तो उसको पीछे से यू टेक द पिक्चर और फिर पेशेंट को बिठा के भी यू कैन मैच द आइरिस। और क्या करना है, कॉर्नियल बटन को यहाँ डाल देना है, ये साइड नहीं रहेगा अभी, ये तो मैं ऐसे ही लगा के लाया हूँ। इसको डालने के बाद वाइट PMMA पाउडर रहता है, 2 काइंड्स ऑफ। नॉर्मल PMMA में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, लेकिन एक दूसरा होता है वाइट, उसमें वाइट पिगमेंट्स रहता है। उसको डाल के पहले तो बटन डाला, फिर उसका ना ऐसा आटा जैसा लोई काइंड ऑफ यू मेक, यू पुट इट एंड देन इसको ऐसे बंद करो और पॉलीमराइज कर दो अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर, अलग पॉलीमराइज रहता है। इसको फिर जब पॉलीमराइज होकर निकलेगा उसको खोल के तो ये ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं, वाइट रहेगा लेकिन एक बीच में कॉर्नियल बटन रहेगा, आइरिस रहेगा, राइट। अब उसको क्या करना है, पेशेंट के दूसरे आँख के स्क्लेरा के साथ देख के उसको मैच करना है, कलर करना है, और उसके बाद क्लियर PMMA से विल हैव टू गिव अ लेमिनेशन। लेमिनेशन करने के बाद यू डू द पॉलिशिंग, ट्रिमिंग, अच्छे से पॉलिश करो और फिर पेशेंट के आँख में लगा दो। दिस इज़ वन आई वॉज टेलिंग अबाउट इज द होलो प्रोसेसेस, मैंने बोला था ना। अब देखो ये दोनों प्रोसेसेस छू के देखो, एक साइड ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है, देखो इसका आइरिस वगैरह और उसके ये भी बना है, आर्कस वगैरह सारा बना है, देखो आर्कस, ब्लड वेसल्स, पॉकेट में मत डालना, पिगमेंटेशन दिखाओ। Okay. So next time what I'll do when I come, I'll make this eyeball kind of keychain, ठीक है, and I'll ask not like optometry related quiz, ऐसे I'll ask some question, जिसने भी आंसर दिया I'll give this kind of
कीचेन रिंग्स, तो अच्छा लगेगा ना। Yes. सामने निकालोगे विदाउट नोइंग पीपल विल नो दैट यू आर एन आई स्पेशलिस्ट। आँख आपके पॉकेट में लेके आप घूम रहे हो, ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना, कितना इजीली निकल रहा है। तो क्या है, दिस इज वेरी थिन एंड दिस इज वेरी थिक, कैन यू सी। लेकिन जब हम पानी में डालेंगे, सी दिस इज ड्राउन बिकॉज इट्स हेवियर, एंड देन ये देखो ये कितना लाइट है, सो इट्स यू नो फ्लोटिंग because of its shape and because of the air trapped inside. अंदर हवा है, okay. So क्या है, this is floating. So and one more prosthesis which I wanted to show is the सारा निकाल लिया है ना, तो इसको मतलब ऐसे अंदर लगाना होगा। There are two techniques. वो भी ऐसे मूव करता है क्या, जैसे ऐसे ऐसे नो वो मूव नहीं करता। Move होगा, बट दैट विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। उसमें क्या है, जो आईलिड्स ये सिलिकॉन से बना रहे हैं ना, उसको छोटा मोटर लगाना होगा, सो दैट द पेशेंट कैन हैव अ रिमोट इन हिज पॉकेट, और दूसरा आँख जैसे ब्लिंक हो रहा है, विल जस्ट कीप प्रेसिंग। लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम है। मान लो अगर ये आँख ब्लिंक नहीं हुआ और इसने आपने दबा दिया, तो थप्पड़ भी मिल सकता है, ऐसा लगेगा कि आँख मार रहा है। उसी वजह से वी हैव नॉट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये आई और हैंड कोऑर्डिनेशन इज टफ टू मेक ना। फिर भी तो ऐसा ही होगा, एक ही आँख ब्लिंक करेगा, एक नहीं करेगा, तो भी फिर नहीं, उसमें क्या होता है, वी पुट स्पेशल मतलब ऑप्टिकल करेक्शन वाला चश्मा लगाते हैं। ये सिलिकॉन वाला प्रोस्थेसिस कभी भी पेशेंट ऐसे नहीं पहनेगा, इट विल हैव अ ग्लास ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। तो वो ग्लास में ऐसा हम लोग कुछ ऑप्टिकल करेक्शन देते हैं, ताकि पीपल विल नॉट जज दैट वन आई इज ब्लिंकिंग, वन इज नॉट, राइट। मतलब फुल्ली रियलिस्टिक वाला है। तो यू कैन सी हाउ इट फील्स लाइक, यू कैन टच एंड फील, सेम स्किन काइंड ऑफ टेक्सचर रहता है, सारा चीज़। सर ये फिक्स रहता है क्या, ये निकाल सकते हैं क्या इसको निकालना होगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। कभी महीने में एक बार 2 मिनट के लिए निकालना है, क्लीन करना है, एंड यू कैन पुट इट। सर अगर ये अंदर जाने के बाद घूम गए तो? अंदर जाने के बाद घूमेगा जब आप अच्छे से मेजरमेंट नहीं लिया है। इफ़ यू आर टेकन द इम्प्रेशन वेरी नाइसली, क्या होगा, इट विल स्टे इन प्लेस एंड इट विल मूव इन ऑल डायरेक्शन, जैसे वीडियोस में मैंने दिखाया था ना, इट विल जस्ट मूव लाइक वो अंकल जो कर रहा था, अंकल और ये 2 लड़कियों का वीडियो था ना लास्ट में। नहीं रह सकते। अच्छा लेट हिम आस्क ना, वर्कशॉप है। सीख रहा हो कुछ, दिखा मेरे को। सो जैसे हम लोग निकाल देना, सो दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन विल कम ऑन बैकवर्ड ना, अकॉर्डिंग टू द ये मतलब जो होता है इनके, ये सब मतलब जाने के बाद जो ऊपर जैसा सरफेस होगा वैसा ही बिल्कुल। तो बिल्कुल वही हिसाब से बैठेगा ना। लेकिन अगर आपने एक रेडीमेड वाला लगा लिया तो क्या होगा, वो तो कटोरे जैसा रह गया ना। तो अगर आपने एक रेडीमेड वाला लगा लिया तो क्या होगा, वो तो कटोरे जैसा रह गया ना। तो वो सरफेस और इसके बीच में स्पेस रह गया, तो मूव तो होगा भी नहीं, ऊपर से वो कीचड़ बहुत ज़्यादा मवाद और ये पैदा होगा ना। एयर की वजह से नहीं, वो टीयर फ्लूइड्स होता है ना, आंसू वगैरह, उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होगा। क्योंकि वो देखो, जो ड्रेनेज चलता रहता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होता, लेकिन वो तो वो हो गया ना, जमा हो गया वहाँ पे, प्लेस रह जाएगा। इसी वजह से। तो इसीलिए हेल्थ वाइज भी हमें रेडीमेड वाला नहीं लगाना चाहिए, कस्टम डिज़ाइन वाला ही लगाना चाहिए। फाइन, यस सर। ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम जब आई विल कम अगेन, वी विल Okay, more sir. time to this in details, because today we are little bit running out of time. ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। ओह सो फाइनली ओवर। बहुत पूछ लिया तुमने। हाँ क्यों, नॉलेज नो नो नो, अच्छा हुआ गुड। अच्छा था। हाँ फिर नहीं वो अंदर जाके घूम गिर मत जाना अभी बस। हाँ वही तो नहीं, अगर लगा तेरा दिया क्वेश्चन अच्छा था नहीं सच्ची में। अगर लगा दिया एक पेशेंट को, वो ज्ञानी वो 2 दिन बाबाज बाद दे आया यार। कि वो उल्टा हो गया उसका। सेमिनार वाज ऑसम, अच्छा था बहुत। एंड सेमिनार करके अभी बहुत लगा है भूख मतलब सब कुछ, प्याज भी बोल सकते हो। सो आई बॉट दिस ब्राउनी फज, खाते खाते चलते हैं। हो चुका है, चलते हैं हम भी। ओके बाय बाय।